صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب خریدار اگر چاہے تو مسرات کو واپس کر سکتا ہے، لیکن اس کے دودھ کے بدلہ میں جو خریدار نے استعمال کیا ہے 1 سا کھجور دے دے۔ حدیث نمبر 2151۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے زیاد نے خبر دی کہ عبداللہ الرحمن بن زید کے غلام ثابت نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسرات بکری خریدی اور اسے دوہا تو اگر وہ اس معاملہ پر راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے اور اس کے دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور دے دے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب زانی غلام کی بی کا بیان۔ حدیث نمبر 2152۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعید مقبری نے خبر دی، ان سے ان کے باپ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زنا کا ثبوت شرعی مل جائے تو اسے کوڑے لگوائے، پھر اس کی لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگوائے، مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے بیچ دے، چاہے بال کی 1 رسی کے بدلہ ہی میں کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب زانی غلام کی بی کا بیان۔ حدیث نمبر 2153۔ ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ باندی زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر بھی اگر زنا کرے تو اسے بیچ دو، اگرچہ 1 رسی ہی کے بدلے میں وہ فروخت ہو۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ بیچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تھا یا چوتھی مرتبہ۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب زانی غلام کی بی کا بیان۔ حدیث نمبر 2154۔ ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ باندی زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ، پھر بھی اگر زنا کرے تو اسے بیچ دو، اگرچہ 1 رسی ہی کے بدلے میں وہ فروخت ہو۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ بیچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تھا یا چوتھی مرتبہ۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب عورتوں سے خرید و فروخت کرنا۔ حدیث نمبر 2155۔ ترجمہ۔ ہم سے ابوالیمن نے بیان کیا، کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے روح بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بریرہ کے خریدنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے، جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو، وہ شرط باطل ہوگی، خواہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے، کیونکہ اللہ ہی کی شرط حق اور مضبوط ہے اور اسی کا اعتبار ہے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب عورتوں سے خرید و فروخت کرنا۔ حدیث نمبر 2156۔ ترجمہ۔ ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے تھے کہ عائشہ بریرہ کی جو باندی تھیں قیمت لگا رہی تھیں تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے کہا کہ بریرہ کے مالکوں نے تو اپنے لیے ولا کی شرط کے بغیر انہیں بیچنے سے انکار کر دی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے یا غلام، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان کسی اجرت کے بغیر بیچ سکتا ہے، اور کیا اس کی مدد یا اس کی خیر خواہی کر سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2157۔
तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने, इन्होंने जरीर से ये सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शहादत पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करने और ज़कात देने और अपने मुकर्ररा अमीर की बात सुनने और इसकी इताअत करने पर और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने की बैत की थी। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब किया कोई शहरी किसी देहाती का सामान किसी उजरत के बगैर बेच सकता है, और किया इसकी मदद या इसकी खैर खाही कर सकता है। हदीस नंबर 2158। तर्जुमा। हमसे सलत बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारती काफिलों से आगे जाकर ना मिला करो, उनको मंडी में आने दो, और कोई शहरी किसी देहाती का सामान ना बेचे। इन्होंने बयान किया कि इस पर मैंने इब्न अब्बास से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का कि कोई शहरी किसी देहाती का माल ना बेचे का मतलब क्या है, तो इन्होंने फरमाया कि मतलब ये है कि उसका दिलाल ना बने। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब जिन्होंने उसे मकरूह रखा कि कोई शहरी आदमी किसी भी देहाती का माल उजरत लेकर बेचे। हदीस नंबर 2159। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन सबा ने बयान किया, कहा कि हमसे आबा अली हनफी ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई शहरी किसी देहाती का माल बेचे। यही इब्न अब्बास ने भी कहा है। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब इस बयान में कि कोई बस्ती वाला बाहर वाले के लिए दलाली करके मोल ना ले। हदीस नंबर 2160। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि मुझे इब्न जरेज ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने किसी भाई के मोल पर मोल ना करे और कोई नजश धोखा फरेब ना करे और ना कोई शहरी किसी देहाती के लिए बेचे या मोल ले। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब इस बयान में कि कोई बस्ती वाला बाहर वाले के लिए दलाली करके मोल ना ले। हदीस नंबर 2161। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे माज बिन माज ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन औन ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने कि अनस बिन मालिक ने बयान किया कि हमें इससे रोका गया कि कोई शहरी किसी देहाती का माल तिजारत बेचे। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब पहले से आगे जाकर काफिले वालों से मिलने की मुमानत और ये भी रद्द कर दी जाती है। हदीस नंबर 2162। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती काफिलों से आगे बढ़कर मिलने से मना फरमाया है और बस्ती वालों को बाहर वालों का माल बेचने से भी मना फरमाया। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब पहले से आगे जाकर काफिले वालों से मिलने की मुमानत और ये भी रद्द कर दी जाती है। हदीस नंबर 2163। तर्जुमा। मुझसे अयाश बिन अब्दुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे इब्न ताउस ने, उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब क्या है कि कोई शहरी किसी देहाती का माल ना बेचे, तो इन्होंने कहा कि मतलब यह है कि उसका दिलाल ना बने। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब पहले से आगे जाकर काफिले वालों से मिलने की मुमानत और ये भी रद्द कर दी जाती है। हदीस नंबर 2164। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया कि हमसे तीमी ने बयान किया, उनसे अबू उस्मान ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि जो कोई दूध जुमा की हुई बकरी खरीदे वो बकरी फेर दे और उसके साथ एक साथ दे दे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला वालों से आगे बढ़कर मिलने से मना फरमाया। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब पहले से आगे जाकर काफिले वालों से मिलने की मुमानत और ये भी रद्द कर दी जाती है। हदीस नंबर 2165। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे की भी पर भी ना करे और जो माल बाहर से आ रहा हो इससे आगे जाकर ना मिले जब तक वो बाजार में ना आए। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब काफिले से कितनी दूर आगे जाकर मिलना मना है। हदीस नंबर 2166। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम आगे काफिलों के पास खुद ही पहुंच जाया करते थे और शहर में पहुंचने से पहले ही उनसे गल्ला खरीद लिया करते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना फरमाया कि हम इस माल को उसी जगह बेचें जब तक अनाज के बाजार में ना लाएं। इमाम बुखारी ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र का ये मिलना बाजार के बुलंद किनारे पर था। जदुर से सौदागर आया करते थे और ये बात उबैदुल्लाह की हदीस से निकलती है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब काफिले से कितनी दूर आगे जाकर मिलना मना है। हदीस नंबर 2167। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने कहा कि मुझसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि लोग बाजार की बुलंद जानिब जाकर गल्ला खरीदते और वहीं बेचने लगते। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि गल्ला वहाँ ना बेचें जब तक उसको अटवाकर दूसरी जगह ना ले जाएं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अगर किसी ने भी में नाजायज़ शर्तें लगाएं तो इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2168। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, इन्हीं उनके बाप रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मेरे पास बरीरा, जो इस वक्त तक बानदी थीं, आईं और कहने लगीं कि मैंने अपने मालिकों से 9 औक़िया चांदी पर किताबत कर ली है। शर्त ये हुई है कि हर साल 1 औक़िया चांदी इन्हीं दिया करूं। अब आप भी मेरी कुछ मदद कीजिए। इस पर मैंने इससे कहा कि अगर तुम्हारे मालिक ये पसंद करें कि यकमशत उनका सब रुपया मैं उनके लिए अभी मुहैया कर दूं और तुम्हारा तरका मेरे लिए हो तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बरीरा अपने मालिकों के पास गईं और आयशा की तजवीज़ उनके सामने रखी, लेकिन इन्होंने इससे इनकार किया। फिर बरीरा उनके यहाँ वापस आएँ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के यहाँ बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि मैंने तो आपकी सूरत उनके सामने रखी थी मगर वो नहीं मानते बल्कि कहते हैं कि तरका तो हमारा ही रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और आयशा ने भी आपको हकीकत हाल से खबर की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरीरा को तुम ले लो और इन्हीं तरका की शर्त लगाने दो। तरका तो उसी का होता है जो आज़ाद कराए। आयशा ने ऐसा ही किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर लोगों के मजमा में तशरीफ़ ले गए और अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, अमाबद। कुछ लोगों को क्या हो गया है कि वो खरीदो फरोख्त में ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी किताब अल्लाह में कोई असल नहीं है। जो कोई शर्त ऐसी लगाई जाए जिसकी असल किताब अल्लाह में ना हो वो बातिल होगी, ख्वाह ऐसी 100 शर्तें कोई क्यों ना लगाए। अल्लाह ताला का हुक्म सब पर मुक़द्दम है और अल्लाह की शर्त ही बहुत मजबूत है और वला तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अगर किसी ने भी में नाजायज़ शर्तें लगाएं तो इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2169। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम ने कि उम्मुल मुमिनीन आयशा ने चाहा कि एक बानदी को खरीद कर आज़ाद कर दें, लेकिन उनके मालिक ने कहा कि हम इन्हीं इस शर्त पर आपको बेच सकते हैं कि उनकी वला हमारे साथ रहे। इसका जिक्र जब आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शर्त की वजह से तुम क़ता ना रुको, वला तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब खजूर को खजूर के बदला में बेचना। हदीस नंबर 2170। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे मालिक बिन ओस ने, इन्होंने उम्र से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गेहूं को गेहूं के बदला में बेचना सूद है, लेकिन ये कि सौदा हाथों हाथ हो। जिलो को जिलो के बदला में बेचना सूद है, लेकिन ये कि हाथों हाथ हो। और खजूर को खजूर के बदला में बेचना सूद है, लेकिन ये कि सौदा हाथों हाथ नकदा नकद हो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब मुनकी को मुनकी के बदल और अनाज को अनाज के बदल बेचना। हदीस नंबर 2171। तर्जुमा।
हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना से मना फरमाया। मज़ाबना ये कि दरख्त पर लगी हुई खजूर खुश्क खजूर के बदला माप करके बेची जाए, उसी तरह बेल पर लगे हुए अंगूर को मुनकी के बदल बेचना। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब मुनकी को मुनकी के बदल और अनाज को अनाज के बदल बेचना। हदीस नंबर 2172। तर्जुमा। हमसे अबुल-नुमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने, उनसे अयूब ने, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाबना से मना फरमाया। इन्होंने बयान किया कि मज़ाबना यह है कि कोई शख्स दरख्त पर की खजूर सूखी खजूर के बदल माप तोल कर बेचे और ख़रीदार कहे अगर दरख्त का फल इस सूखे फल से ज़्यादा निकले तो वो इसका है और कम निकले तो वो नुकसान भर देगा। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब मुनकी को मुनकी के बदल और अनाज को अनाज के बदल बेचना। हदीस नंबर 2173। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि मुझसे ज़ैद बिन साबित ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अराया की इजाज़त दे दी थी जो अंदाज़े ही से भी की एक सूरत है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब जिलो के बदले जिलो की बी करना। हदीस नंबर 2174। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने और इन्हीं मालिक बिन ओस ने खबर दी कि इन्हीं 100 अशरफियों बदलनी थीं। इन्होंने बयान किया कि फिर मुझे तलहा बिन उबैदुल्लाह ने बुलाया और हमने अपने मुआमला की बातचीत की और उनसे मेरा मुआमला तय हो गया। वो सोने अशरफीव को अपने हाथ में लेकर अलटने पलटने लगे और कहने लगे कि ज़रा मेरे ख़जानची को गाबा से आ लेने दो। उम्र भी हमारी बातें सुन रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तक तुम तलहा से रुपया ले ना लो उनसे जुदा ना होना, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सोना सोने के बदला में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाता है, गेहूं के बदले में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाता है, जिलो के बदला में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाता है, और खजूर के बदला में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाती है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब सोने को सोने के बदला में बेचना। हदीस नंबर 2175। तर्जुमा। हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इस्माइल बिन अलैह ने खबर दी, कहा कि मुझे यही बिन अबी इसहाक़ ने खबर दी, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकरा ने बयान किया, उनसे अबू बकरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले में इस वक्त तक ना बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर बराबर की लेन देन ना हो। उसी तरह चांदी के बदला में इस वक्त तक ना बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर बराबर ना हो। अलबत्ता सोना चांदी के बदल और चांदी सोने के बदल में जिस तरह चाहो बेचो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब चांदी को चांदी के बदले में बेचना। हदीस नंबर 2176। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे चचा ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी के भतीजे ने बयान किया, उनसे उनके चचा ने बयान किया कि मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि अबू सईद खदरी ने उसी तरह एक हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से बयान की जैसे अबू बकरा या उम्र से गुजरी। फिर एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन उम्र की उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा, ए अबू सईद, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से ये कौन सी हदीस बयान करते हैं? अबू सईद खदरी ने फरमाया कि हदीस भी सिर्फ यानी रुपया अशरफियों बदलने या तड़वाने से मुताल्लिक है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना था कि सोना सोने के बदले में बराबर बराबर ही बेचा जा सकता है और चांदी के बदला में बराबर बराबर ही बेची जा सकती है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब चांदी को चांदी के बदले में बेचना। हदीस नंबर 2177। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अबू सईद खदरी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले इस वक्त तक ना बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर बराबर ना हो, दोनों तरफ से किसी कमी या ज़ियादती को रवा ना रखो, और चांदी को चांदी के बदले में इस वक्त तक ना बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर बराबर ना हो, दोनों तरफ से किसी कमी या ज़ियादती को रवा ना रखो, और ना उधार को नकद के बदले में बेचो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अशरफी के बदले उधार बेचना। हदीस नंबर 2178। तर्जुमा।
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा कि मुझे इमरु बिन दीनार ने खबर दी, इन्हें अबू साला ज़ियात ने खबर दी, और इन्होंने अबू सईद खदरी को ये कहते सुना कि दीनार के बदले में और दिरहम के बदले में बेचा जा सकता है। इस पर मैंने उनसे कहा कि इब्न अब्बास तो इसकी इजाज़त नहीं देते। अबू सईद ने बयान किया कि फिर मैंने इब्न अब्बास से उसके मुताल्लिक पूछा कि आपने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था या किताब अल्लाह में आपने इसे पाया है? इन्होंने कहा कि उनमें से किसी बात का मैं दावेदार नहीं हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अलबत्ता मुझे उसामा ने खबर दी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़कूरा सूरत में सूद सिर्फ उधार की सूरत में होता है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब अशरफी के बदले उधार बेचना। हदीस नंबर 2179। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, कहा कि मुझे इमरु बिन दीनार ने खबर दी, इन्हें अबू साला ज़ियात ने खबर दी, और इन्होंने अबू सईद खदरी को ये कहते सुना कि दीनार के बदले में और दिरहम के बदले में बेचा जा सकता है। इस पर मैंने उनसे कहा कि इब्न अब्बास तो इसकी इजाज़त नहीं देते। अबू सईद ने बयान किया कि फिर मैंने इब्न अब्बास से उसके मुताल्लिक पूछा कि आपने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था या किताब अल्लाह में आपने इसे पाया है? इन्होंने कहा कि उनमें से किसी बात का मैं दावेदार नहीं हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अलबत्ता मुझे उसामा ने खबर दी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़कूरा सूरतों में सूद सिर्फ उधार की सूरत में होता है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब चांदी को सोने के बदले उधार बेचना। हदीस नंबर 2180। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे हबीब बिन अबी साबित ने खबर दी, कहा कि मैंने अबुल मनहाल से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने बरा बिन आज़ब और ज़ैद बिन रक़म से भी सिर्फ के मुताल्लिक पूछा तो उन दोनों हज़रात ने एक दूसरे के मुताल्लिक फरमाया कि ये मुझसे बेहतर हैं। आखिर दोनों हज़रात ने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को चांदी के बदले में उधार की सूरत में बेचने से मना फरमाया है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब चांदी को सोने के बदले उधार बेचना। हदीस नंबर 2181। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे हबीब बिन अबी साबित ने खबर दी, कहा कि मैंने अबुल मनहाल से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने बरा बिन आज़ब और ज़ैद बिन रक़म से भी सिर्फ के मुताल्लिक पूछा तो उन दोनों हज़रात ने एक दूसरे के मुताल्लिक फरमाया कि ये मुझसे बेहतर हैं। आखिर दोनों हज़रात ने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को चांदी के बदले में उधार की सूरत में बेचने से मना फरमाया है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब सोना चांदी के बदले नकद हाथों हाथ बेचना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2182। तर्जुमा। हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे इबाद बिन अवाम ने कहा कि हमको यही बिन अबी असहक ने खबर दी, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकरा ने बयान किया, और उनसे उनके बाप अबू बकरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी के बदले में और सोने के बदले में बेचने से मना फरमाया है, मगर ये कि बराबर बराबर हो। अलबत्ता सोना चांदी के बदले में जिस तरह चाहें खरीदें, उसी तरह चांदी सोने के बदले जिस तरह चाहें खरीदें। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब भी मजाबना के बयान में, और ये खुश्क खजूर की भी दरख्त पर लगी हुई खजूर के बदले और खुश्क अंगूर की भी ताज़ा अंगूर के बदले में होती है, और भी अराया का बयान। हदीस नंबर 2183। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, और उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी, और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल दरख्त पर का इस वक्त तक ना बेचो जब तक उसका पका होना ना खल जाए, और दरख्त पर लगी हुई खजूर को खुश्क खजूर के बदले में ना बेचो। सालिम ने बयान किया कि मुझे अब्दुल्लाह ने खबर दी, और इन्हीं ज़ैद बिन साबित ने कि बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीरी की तर या खुश्क खजूर के बदला में इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसके सिवा किसी सूरत की इजाज़त नहीं दी थी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब भी मजाबना के बयान में, और ये खुश्क खजूर की भी दरख्त पर लगी हुई खजूर के बदले और खुश्क अंगूर की भी ताज़ा अंगूर के बदले में होती है, और भी अराया का बयान। हदीस नंबर 2184। तर्जुमा।
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया और उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल दरख्त पर का इस वक्त तक ना बेचो जब तक उसका पका होना ना खल जाए, और दरख्त पर लगी हुई खजूर को खुश्क खजूर के बदले में ना बेचो। सालिम ने बयान किया कि मुझे अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हीं ज़ैद बिन साबित ने कि बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीरी की तर या खुश्क खजूर के बदला में इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसके सिवा किसी सूरत की इजाज़त नहीं दी थी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बी मजाबना के बयान में और ये खुश्क खजूर की भी दरख्त पर लगी हुई खजूर के बदले और खुश्क अंगूर की भी ताज़ा अंगूर के बदले में होती है और बी अराया का बयान। हदीस नंबर 2185। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाबना से मना फरमाया। मजाबना दरख्त पर लगी हुई खजूर को टूटी हुई खजूर के बदले नापकर और दरख्त के अंगूर को खुश्क अंगूर के बदले में नापकर बेचने को कहते हैं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बी मजाबना के बयान में और ये खुश्क खजूर की भी दरख्त पर लगी हुई खजूर के बदले और खुश्क अंगूर की भी ताज़ा अंगूर के बदले में होती है और बी अराया का बयान। हदीस नंबर 2186। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं दाऊद बिन हसीन ने, इन्हीं इब्न नबी अहमद के ग़ुलाम अबू सुफियन ने और इन्हीं अबू सईद ख़दरी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाबना और मुहाकिला से मना फरमाया। मजाबना दरख्त पर लगी खजूर तोड़ी हुई खजूर के बदले में ख़रीदने को कहते हैं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बी मजाबना के बयान में और ये खुश्क खजूर की भी दरख्त पर लगी हुई खजूर के बदले और खुश्क अंगूर की भी ताज़ा अंगूर के बदले में होती है और बी अराया का बयान। हदीस नंबर 2187। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे मावी ने बयान किया, उनसे शीबानी ने, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकिला और मजाबना से मना फरमाया। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बी मजाबना के बयान में और ये खुश्क खजूर की भी दरख्त पर लगी हुई खजूर के बदले और खुश्क अंगूर की भी ताज़ा अंगूर के बदले में होती है और बी अराया का बयान। हदीस नंबर 2188। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब अरी को इसकी इजाज़त दी कि अपना अरी इसके अंदाज़े बराबर मेवे के बदल बीच डाले। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब दरख्त पर फल सोने और चांदी के बदले बेचना। हदीस नंबर 2189। तर्जुमा हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, इन्हीं इब्न जरेज ने खबर दी, इन्हीं अता और अबू ज़बीर ने और इन्हीं जाबिर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के पकने से पहले बेचने से मना किया है और ये कि इसमें से ज़र्रा बराबर भी दिरहम वाउ देना के सिवा किसी और चीज़ सूखे फल के बदले ना बेची जाए, अलबत्ता अरी की इजाज़त दी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब दरख्त पर फल सोने और चांदी के बदले बेचना। हदीस नंबर 2190। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने इमाम मालिक से सुना, उनसे उबैदुल्लाह बिन रबी ने पूछा कि क्या आपसे दाऊद ने सुफियान से और इन्होंने अबू हरीरा से ये हदीस बयान की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वसक़िया इससे कम में भी अरी की इजाज़त दे दी है, तो इन्होंने कहा कि नहीं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब दरख्त पर फल सोने और चांदी के बदले बेचना। हदीस नंबर 2191। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि यही बिन सईद ने बयान किया कि मैंने बशीर से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने सहल बिन अबी हसमा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त पर लगी हुई खजूर को तोड़ी हुई खजूर के बदले बेचने से मना फरमाया, अलबत्ता अरी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि अंदाज़ा करके ये भी की जा सकती है कि अरी वाले इसके बदल ताज़ा खजूर खाएं। सुफियान ने दूसरी मर्तबा ये रिवायत बयान की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरी की इजाज़त दे दी थी कि अंदाज़ा करके ये भी की जा सकती है खजूर ही के बदले में। दोनों का मफ़हूम एक ही है। सुफियान ने बयान किया कि मैंने यही से पूछा, इस वक्त में अभी कम उम्र था कि मक्का के लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरी की इजाज़त दी है, तो इन्होंने पूछा कि अहल मक्का को ये किस तरह मालूम हुआ।
मी ने कहा कि वो लोग जाबिर से रिवायत करते हैं। इस पर वो खामोश हो गए। सुफियान ने कहा कि मेरी मुराद इससे ये थी कि जाबिर मदीना वाले हैं। सुफियान से पूछा गया कि क्या उनकी हदीस में ये मुमानत नहीं है कि फलों को बेचने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जब तक उनकी पख्तगी ना खल जाए। इन्होंने कहा कि नहीं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब अरी की तफसीर का बयान। हदीस नंबर 2192। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी। इन्होंने कहा कि हमें मूसा बिन उक़बा ने, इन्हीं नाफा ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, इन्हीं ज़ैद बिन साबित ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरी की इजाज़त दी कि वो अंदाज़े से बेची जा सकती है। मूसा बिन उक़बा ने कहा कि अराया कुछ मुअय्यन दरख्त जिनका मेवा तो उतरे हुए मेवे के बदल खरीदे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। हदीस नंबर 2193। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोग फलों की खरीद व फरोख्त दरख्तों पर पकने से पहले करते थे। फिर जब फल तोड़ने का वक्त आता और मालिक कीमत का तकाजा करने आते तो खरीदार ये अज़र करने लगते कि पहले ही इसका गाभा ख़राब और काला हो गया, उसको बीमारी हो गई, ये तो ठिठर गया, फल बहुत ही कम आए। उसी तरह मुख्तलिफ आफतों को बयान करके मालिकों से झगड़ता ताकि कीमत में कमी करा लें। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह के मुकदमात बकसरत आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस तरह झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते तो तुम लोग भी मेवा के पकने से पहले उनको ना बेचा करो। गोया मुकदमात की कसरत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतौर मशवरा फरमाया था। खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित ने मुझे खबर दी कि ज़ैद बिन साबित अपने बाग के फल इस वक्त तक नहीं बेचते जब तक सरीना तुलू हो जाता और जरदी और सुर्खी ज़ाहिर ना हो जाती। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि इसकी रिवायत अली बिन बहर ने भी की है कि हमसे हुक्काम बिन सलीम ने बयान किया, उनसे अनबसा ने बयान किया, उनसे ज़करिया ने, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे रू ने और उनसे सहल बिन साद ने और उनसे ज़ैद बिन साबित ने। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब फलों की पख्तगी मालूम होने से पहले उनको बेचना मना है। हदीस नंबर 2194। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता होने से पहले फलों को बेचने से मना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानत बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को थी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब फलों की पख्तगी मालूम होने से पहले उनको बेचना मना है। हदीस नंबर 2195। तर्जुमा हमसे इब्न मकातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं हमीद तवील ने और इन्हीं अनस ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकने से पहले दरख्त पर खजूर को बेचने से मना फरमाया है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि हत्ता तज़हू से मुराद ये है कि जब तक वो पककर सुर्ख ना हो जाएं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब फलों की पख्तगी मालूम होने से पहले उनको बेचना मना है। हदीस नंबर 2196। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे सलीम बिन हयन ने, उनसे सईद बिन मैना ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों का तशका से पहले बेचने से मना किया था। पूछा गया कि तशका किसे कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माइल ब ज़रदी या माइल ब सुर्खी होने को कहते हैं कि उसे खाया जा सके, फल का पुख्ता होना मुराद है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब जब तक खजूर पुख्ता ना हो इसका बेचना मना है। हदीस नंबर 2197। तर्जुमा मुझसे अली बिन हशीम ने बयान किया कि हमसे अली बिन मंसूर ने बयान किया, उनसे हशीम ने बयान किया, इन्हीं हमीद ने खबर दी और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता होने से पहले फलों को बेचने से मना फरमाया है और खजूर के बाग को ज़हू से पहले बेचने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ज़हू किसे कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, माइल ब सुर्खी या माइल ब ज़रदी होने को कहते हैं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अगर किसी ने पुख्ता होने से पहले ही फल बेचे फिर उन पर कोई आफत आई तो वो नुकसान बेचने वाले को भरना पड़ेगा। हदीस नंबर 2198। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हमीद ने और इन्हीं अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को ज़हू से पहले बेचने से मना फरमाया है।
उनसे पूछा गया कि ज़हू किसे कहते हैं तो जवाब दिया कि सुर्ख होने को। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ही बताओ, अल्लाह ताला के हुक्म से फलों पर कोई आफत आ जाए तो तुम अपने भाई का माल आखिर किस चीज़ के बदले लोगे। लीस ने कहा कि मुझे से यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि एक शख्स ने अगर पुख्ता होने से पहले ही दरख्त पर फल खरीदे, फिर उन पर कोई आफत आ गई तो जितना नुकसान हुआ वो सब असल मालिक को भरना पड़ेगा। मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुख्ता होने से पहले फलों को ना बेचो और ना दरख्त पर लगी हुई खजूर को टूटी हुई खजूर के बदले में बेचो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अगर किसी ने पुख्ता होने से पहले ही फल बेचे फिर उन पर कोई आफत आई तो वो नुकसान बेचने वाले को भरना पड़ेगा। हदीस नंबर 2199। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हमीद ने और इन्हीं अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को ज़हू से पहले बेचने से मना फरमाया है। उनसे पूछा गया कि ज़हू किसे कहते हैं तो जवाब दिया कि सुर्ख होने को। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ही बताओ, अल्लाह ताला के हुक्म से फलों पर कोई आफत आ जाए तो तुम अपने भाई का माल आखिर किस चीज़ के बदले लोगे। लीस ने कहा कि मुझे से यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि एक शख्स ने अगर पुख्ता होने से पहले ही दरख्त पर फल खरीदे, फिर उन पर कोई आफत आ गई तो जितना नुकसान हुआ वो सब असल मालिक को भरना पड़ेगा। मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुख्ता होने से पहले फलों को ना बेचो और ना दरख्त पर लगी हुई खजूर को टूटी हुई खजूर के बदले में बेचो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अनाज उधार एक मुद्दत मुकर्रर करके खरीदना। हदीस नंबर 2200। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा कि हमने इब्राहिम के सामने कर्ज में गुरूर रखने का जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई हरज नहीं है। फिर हमसे असूद के वासिता से बयान किया कि उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्ररा मुद्दत के कर्ज पर एक यहूदी से गल्ला खरीदा और अपनी ज़िरह इसके यहाँ गुरूर रखी थी।